Hey everyone, welcome to today's session. I'm Prabal Mishra, and today we are diving into how smart sales analysis and follow up strategies can help you close more deals and boost conversions using proven methods and tools that actually work. So, today's agenda is importance of follow ups. So, what is the importance of follow up? Why do we do this process, and what are the benefits for it? So, that first of all, we learn about the importance of follow ups. Then we will see the common mistakes in follows. So, what are the common mistakes faced by business owners and sales people, sales teams while doing these follow ups? And then post it, we will be seeing how to pitch and how to do objection handling, building and managing sales teams, smart sales tools and dashboards, and followed by a Q&A session. So, if in case you might be having any sort of questions or doubts. So I will be resolving all of them in this webinar session. So stay tuned, stick around till the end because the final dashboard part can literally change how you track your sales results daily. So first of all, let us come to section 1. Why follow-ups drive conversions? So in this, we'll be seeing why follow-ups are important and why they drive conversions, means how the follow-up process is important. So first of all, the first reason behind is that it builds trust and resolves doubts. Okay. So let's say you are dealing with a customer. Okay. Prospects are often unsure and they won't say yes until you trust and until they trust you. When you follow up consistently and not just to sell but to solve, they begin to see you as a reliable, not pushy. Then the doubts start getting cleared and then they are ready to buy your product. So इसको मैं एक बार हिंदी में भी समझाता हूँ कि जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जो भी आपका कस्टमर है, जैसे आप अपना प्रोडक्ट बेचने का ट्राई कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में अनश्योर होते हैं, वो एकदम से कुछ भी नहीं ले सकते। जब तक आप फॉलोअप्स करते रहेंगे तो उनको आपके अंदर ट्रस्ट आएगा, उनको लगेगा कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, आप केवल अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं चाह रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तब वो आप पर ट्रस्ट करेंगे और उसके बाद उनके डाउट्स क्लियर होंगे, वो तब आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो सकते हैं। Second is timely follow-ups increase conversion odds. Okay, so if you wait too long, they forget you. But if you follow up while the conversion is still fresh, especially within 24 to 48 hours, you stay relevant and catch them when the interest is still high. Okay, so let's say कि आपने एक किसी कस्टमर से बात आज की, उसके बाद आप उसको फॉलो अप करना भूल गए, आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है और आपने उससे रिलेटेड कहीं भी इंफॉर्मेशन को सेव नहीं किया, आपने 4-5 दिन बाद कॉल किया, हो सकता है कि 4-5 दिन तक उन्होंने फिर किसी और सॉफ्टवेयर से बात कर ली हो और फिर वो तब उसको परचेज कर ले। तो सबसे जरूरी रहता है कि आपको टाइमली रेगुलर इंटरवल्स पर फॉलोअप्स लेते रहने हैं। तो फॉलोअप्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप बार बार फॉलोअप्स लेंगे तो आपका जो कस्टमर है वो आपसे टच में रहता है, ठीक है, और आप रेलेवेंट रहते हैं। और जब उनका हाई इंटरेस्ट हो, क्योंकि हो सकता है वो आज आप उनसे बात कर रहे हैं तो आज उनका आपका प्रोडक्ट खरीदने का मूड ना हो, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। हो सकता है कल उनका प्रोडक्ट खरीदने का मूड हो, लेकिन आप उनको कल ना कॉल करके 4 दिन बाद कॉल करें, तो उस केस में फिर आपका जो कन्वर्जन है वो लूज होने के चांस होते हैं और कन्वर्जन नहीं होता है। सो टाइमली फॉलोअप्स इंक्रीज कन्वर्जन ऑड्स। नेक्स्ट थिंग इज कीप्स यू टॉप द माइंड टिल बायर इज रेडी। सो अभी क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स नहीं है या उसके सिमिलर और प्रोडक्ट्स नहीं है, और जो आपका कस्टमर है, पोटेंशियल बायर है, उसको आपके जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जहां पर आप अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट को लेकर फॉलोअप्स कर रहे हैं, वहीं पर आपके कॉम्पिटिटर्स भी, आपके सब्स्टिट्यूट्स भी उसके पास जा रहे हैं। सो इन केस आपका जो कस्टमर है, आपके कस्टमर के पास बहुत सारे लोग हैं और उसको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो अगर आप फॉलोअप्स को टाइमली रखेंगे, ठीक है, अगर आप उसको रेगुलरली उससे बातचीत करते रहेंगे, आप सॉफ्ट रहेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप कंसिस्टेंसी शो करेंगे, तो मे बी वो वाया व्हाट्सएप और वाया ईमेल, ठीक है, बट आपका जो कन्वर्जन है वो होगा बिकॉज क्योंकि जब कस्टमर है, जब भी उसको उस प्रोडक्ट की नीड समझ में आएगी, तब वो ये सोचेगा कि उसको सबसे ज्यादा किसने फॉलोअप किया। जो सबसे ज्यादा फॉलोअप करेगा
उसी का नाम उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा. So that's why regular follow-ups keeps you top of the mind till the buyer is ready. So ये हमने अभी डिस्कस किया why follow-ups drive conversions. Follow-ups क्यों जरूरी हैं? इनकी वजह से कन्वर्जन क्यों होता है. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इससे ट्रस्ट बनता है. आप रेगुलरली बातचीत करते रहेंगे तो जो कस्टमर है उसको ये लगेगा कि हाँ ये केवल अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, he is also interested about my problem, he is also interested to solve my problem. Okay, so consistency अगर आप उसमें शो करेंगे so he will gain trust on you. The second thing is timely follow-ups increase conversion odds. ठीक है, so you stay relevant and you catch them when the interest is still high. Okay, and then the thing is that third thing is that keeps you top of the mind till buyer is ready. So by this you can ensure that when they are ready you are the first one for them to think about. Okay, now let's move to the next slide. Common sales follow-up mistakes. What are the common mistakes that we do? क्योंकि हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं इन्वॉल्व, एंड एज वी आर ह्यूमन हम मिस्टेक्स करते हैं. उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है? सबसे पहली मिस्टेक है पुअर टाइमिंग एंड इनकंसिस्टेंट आउटरीच. ठीक है, तो आप अगर गलत टाइमिंग पर अपने कस्टमर को कॉल करेंगे या फिर आप टाइमली इंटरवल्स पर अपने कस्टमर से बात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप वो चांस मिस कर दें जब वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है. ठीक है, तो इसलिए जरूरी ये है कि आप उसको टाइमली फॉलोअप्स करते रहें. ठीक है, सो फॉलोइंग अप टू लेट और एट ऑड इंटरवल्स ब्रेक्स मोमेंटम. ठीक है, तो आपने आज कॉल किया, आपने कल कॉल नहीं किया तो फिर आपका जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाता है. सो यू नीड अ शेड्यूल कि आप पहले उनको डे 1 कॉल करें, उसके बाद डे 3 कॉल करें, फिर डे 7 कॉल करें, उसके बाद. एंड इसके ये जो पूरी प्रोसेस है आप ये सेल्स टैगर में बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं. आपको बस आपको ड्यू डेट अपडेट कर देना है, अकेली ड्यू डेट पर अपने आप ही सेल्स टैगर आपको रिमाइंडर भेज देगा और आप फिर जो भी शेड्यूल डेट या टाइम होगी उस पर आपको रिमाइंडर आएगा, आप अपने कस्टमर से बातचीत कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई सेल्स ट्रैकर विल हेल्प यू टू अवॉइड दिस मिस्टेक. एंड नेक्स्ट थिंग इज रॉन्ग चैनल्स. ओके, ईमेल वर्सेस व्हाट्सएप. ठीक है, सो आपको सबसे पहले अपने बायर को जानना है. ठीक है, कि वो किस टाइम पर कहां पर रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है. सो इफ यू नीड अ ईमेल, इफ यू नीड एन ईमेल, आप उनको मेल भेजिए, डोंट सेंड हिम अ व्हाट्सएप. इफ यू नीड अ व्हाट्सएप, आप उनको व्हाट्सएप भेजिए बट डोंट सेंड हिम एन ईमेल. ठीक है, तो आप अपने कस्टमर के मूड के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहां पर अप्रोप्रिएट जो मीडियम हो आप उस पर उनसे बातचीत कीजिए. ठीक है, अगर अभी उन्होंने बोला है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर प्राइसिंग भेजो तो आप उनको व्हाट्सएप पर प्राइसिंग भेजिए, आप उनको एक लंबा सा प्रपोजल मेल लिखकर मत डालिए. ठीक है, सो दिस ऑल्सो मैटर्स. ठीक है, आप अपने कस्टमर के कंफर्ट के हिसाब से काम करेंगे. जैसे आपका जो कस्टमर है वो भी ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, अभी उसको प्रोडक्ट लेने का मन है. ओके, लेकिन उन्होंने आपसे कॉमर्शियल्स के बारे में पूछा, उन्होंने आपसे प्राइसिंग के बारे में पूछा, उन्होंने बोला व्हाट्सएप पर प्राइसिंग डाल दीजिए और आपने उनको मेल कर दिया, तो हो सकता है मेल खोलने में उनको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो. तो फिर वो आपका डिले हो जाएगा और डिले होगा तो फिर उसके बाद देयर आर चांसेस कि आप उस लीड को खो दें. सो अंडरस्टैंड एंड रीड योर बायर, थिंक वेयर ही नीड्स योर फॉलो अप, वेयर ही नीड्स योर मैसेज और एनीथिंग दैट यू नीड टू सेंड टू हिम. तो आप वो चैनल देखकर ही आप उस एप्रोप्रिएट चैनल से ही रीच आउट कीजिए. एंड देन थर्ड, the most important thing is overly generic or pushy messaging. You should not act like you are selling a product to him or you are only selling a product to him. ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप केवल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपना जो प्रोडक्ट है वो ही उनको नहीं बेच रहे हैं, या फिर आप एक टीडियस प्रोसेस में आप बस अपनी जो प्रोसेस है आप बस उसे फॉलो कर रहे हैं. तो वैसा नहीं करना है. जनरली आप जो आपके जो जेनेरिक मैसेज हैं आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप केवल जेनेरिक मैसेज डाल रहे हैं. जो आप सबके लिए सबसे बात करते हैं वो आप उनसे भी बात कर रहे हैं, जो आपने सबके लिए मैसेज डाला हुआ आपने उनको भी फॉरवर्ड कर दिया. सो ऐसा नहीं कीजिए, आप पर्सनलाइज वे में सबसे कनेक्ट कीजिए. ठीक है, और उनकी लाइफ के बारे में यानी कि उनका जो भी प्रोसेस है उसके बारे में आप जानिए और उनसे उसी के हिसाब से इंटरेक्ट कीजिए. अपना प्रोडक्ट ही केवल मत बेचिए. ओके, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए. ठीक है, जस्ट लर्न अबाउट देम एंड टॉक टू देम एंड फिक्स देयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू गिव देम सॉल्यूशंस. तभी उनका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तभी उन्हें लगेगा कि आप एक कोई आप एक वो
पर्सन है जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ना कि बस उनको एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। ओके, सो आई थिंक हमने अभी कॉमन मिस्टेक्स को देखा। अब नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, स्मार्ट फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब हम स्मार्ट फॉलोअप्स कैसे ले सकते हैं और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उनकी, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं, सबसे पहली जो चीज है वो है ऑटोमेट बट पर्सनलाइज यूजिंग नेम हिस्ट्री, ठीक है। आप कई सारे टूल्स हो सकता है यूज कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप कई सारी सर्विसेज का यूज करते हो अपने कस्टमर को रीच आउट करने के लिए, ठीक है। हो सकता है आप ईमेल मार्केटिंग का यूज कर रहे हो, हो सकता है आप व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप कई अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हो। ऑटोमेट करने में कोई बुराई नहीं है, मींस यू कैन ऑटोमेट थिंग्स। आप अपने कन्वीनियंस के लिए, फिर अपनी ईज के लिए, फिर फास्ट चीजों को करने के लिए आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, ओके। बट आपको पर्सनलाइज भी करना है। इन सेल्स ट्रैकर यू कैन ऑटोमेट योर लीड्स डायरेक्टली। तो सेल्स ट्रैकर में आप अगर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से आपके पास एड्स के थ्रू लीड्स आ रही हैं, तो आप सेल्स ट्रैकर में ऑटोमेट कर सकते हैं उन्हें। बट एक बार वो आपके पास आ गई, तब आप उनका आप नाम देखिए, वो किस कंपनी से आ रहे हैं, ठीक है, वो किस बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए। फिर आप उनकी जो बिजनेस बैकग्राउंड है, आप उनके हिसाब से उनसे फॉलोअप्स कीजिए, ठीक है। आप पर्सनलाइज कीजिए। आप उनका जो नाम है, आप अपने जो भी ऑटोमेशन के जो मैसेजेस हैं या आउटरीच है, आप उनके नाम का यूज कीजिए, जिससे उनको पता लगे कि आप उनसे बात कर रहे हैं और आप उनको स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद शेयर रिलेवेंट रिसोर्सेज। आप उनको केवल अपना प्रोडक्ट नहीं बेचिए, आप उनकी हेल्प कीजिए। हेल्प में क्या हो सकता है कि आप उनके साथ रेलेवेंट रिसोर्सेज भेज सकते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के लिए आपके पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है, या फिर उनको अपने रिसोर्स प्लानिंग के लिए आप कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आप उनकी डॉक्यूमेंट बना के उनको भेज सकते हैं। अगर कोई सर्विसेज की कंपनी है, तो आप किसी सर्विस की कंपनी के हिसाब से जो भी उसके लिए बेटर सजेशंस हो, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो अपने ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन रखने की, या फिर क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में, तो आप वो उनको दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या रहता है कि उनके लिए लगता है कि यू आर देयर टू हेल्प यू एंड यू आर देयर टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, नॉट टू जस्ट सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है। आप इसमें और भी क्या कर सकते हैं कि आप केस स्टडीज बना सकते हैं अलग अलग बिजनेसेस के हिसाब से। जैसे कोई आपकी सर्विस की कंपनी आपकी क्लाइंट बनना चाहती है, या फिर आप कोई प्रोस्पेक्ट सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से है, ठीक है, तो आप किसी अपने एग्जिस्टिंग यूजर, जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो सर्विस वाले बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप उनसे बातचीत करेंगे और उनका जैसे हेल्प आपके प्रोडक्ट में किया है, आप उसको लेकर अपनी कुछ डॉक्यूमेंट बनाएंगे या फिर कुछ केस स्टडी बनाएंगे। इस प्रोसेस में सेल्स टैकर आपको ऐसे हेल्प करेगा, क्योंकि सेल्स टैकर में आपको जितने भी आपके वन प्रोस्पेक्ट हैं उनका डेटा मिलता है। तो अपने सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का डेटा निकाल सकते हैं, उन्होंने क्या प्लान लिया था, कितने यूजर्स के लिए लिया था, फिर उन्होंने आपकी कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज की थी, उनके साथ आपकी क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि बातचीत के टाइम पर उनके जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस रहे होंगे वो आपने सेल्स टैकर के रिमार्क्स में सेव किए होंगे, तो आप उनके चैलेंजेस देख सकते हैं। सो आप इस सब के बेसिस पर केस स्टडीज बनाकर अपने नए कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स को दे सकते हैं कि हमारे जो पहले कस्टमर्स ने हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज किया था, उनके बिजनेस में ये बेटरमेंट आया है हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद। सो आप उनको रिसोर्सेज, रेलेवेंट रिसोर्सेज दे सकते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है इसमें ये फायदा होता है, मेरे प्रोडक्ट को इतने लोगों ने लिया है, उनके लिए ये बेनिफिट हुआ है, इतने % ग्रोथ आई है, इतने % प्रॉब्लम्स कम हुई हैं। तो आप उनको अगर रेलेवेंट रिसोर्सेज देंगे तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग हियर्स माय ब्रोशर, हियर्स अ क्विक केस स्टडी आई थॉट यूड लाइक बेस्ड ऑन योर चैट, ठीक है, तो आप उनको एक ब्रोशर भेजने के बजाय केस स्टडी भेजिए किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर की। उसके बाद यूज अ राइट चैनल एट द राइट मोमेंट। ये सिमिलर ही पॉइंट है। अगर आपको बोला गया है कि कॉल कीजिए मुझे, तो आप उनको कॉल कीजिए, मैसेज मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको बोला गया कि आप मुझे व्हाट्सएप पर प्राइसिंग भेजिए, तो आप व्हाट्सएप पर प्राइसिंग भेजिए, प्रपोजल मत भेजिए, ठीक है। तो आप मोमेंट के साथ और मोड्स के साथ मैच कीजिए कस्टमर के जो करंट सिनेरियोज हैं, आप उनके साथ उसकी जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं, करंट अवेलेबिलिटी है, आप उसके हिसाब से ही उससे बातचीत कीजिए या फॉलो कीजिए। Now let's come to section 4, पिचिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। आप अपना जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास लेके जाते हैं, आप कस्टमर को सिर्फ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज पिचिंग, ठीक है। आप उनको पिच कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में।
उसके बाद जब आप अपना प्रोडक्ट बताएंगे उनको तो कस्टमर के साइड से कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, फिर आपको आपकी अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन ऑब्जेक्शंस को ठीक से प्रॉपरली हैंडल करना, ठीक है। सो यूज AEIR मेथड फॉर इट। सो हमारी एक्सपर्ट टीम ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, इसमें हर एक लेटर का एक मीनिंग है। सो जो ए है, ए का मीनिंग है एक्नॉलेज द कंसर्न। तो सबसे पहले तो आपका जो कस्टमर है उसका जो भी कंसर्न है आपको उसे एक्नॉलेज करना होगा, प्लस उसे अपने पास नोट करके रखना होगा, जिससे कि आपके लिए ये रेफरेंस बना रहे कि इस मेरे कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सो इन सेल्स ट्रैकर आपको रिमार्क सेक्शन मिलता है। आप कभी भी किसी कस्टमर से बात करें, सबसे पहले आप उसकी प्रॉब्लम्स को पूछिए, उनका जो भी कंसर्न है उसको एक्नॉलेज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं वो लेकर वहां पर नोट डाउन कर लीजिए सेल्स ट्रैकर के रिमार्क सेक्शन में। तो आपको हर प्रोस्पेक्ट के साथ पता रहता है कि इस प्रोस्पेक्ट का ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो आई थिंक ए क्लियर होगा। उसके बाद ई, एम्पथाइज सिंसियरली, ठीक है। आपको उनके साथ एम्पथाइज करना होगा और वो सिंसियरली करना होगा, ठीक है। आपको ये शो करना होगा कि आप उनके बारे में एक्चुअली केयर करते हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं, तो आप उनको बोलिए कि हाँ, मेनी क्लाइंट्स फेल्ट दैट वे इनिशियली, या फिर हाँ, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स केम with the same problems, with the same issues, and we fix them, ठीक है। तो आपको इस तरह से उनके साथ एम्पथाइज करना है सिंसियरली। उसके बाद आई, इन्फॉर्म विद डेटा और टेस्टिमोनियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उनको डेटा और टेस्टिमोनियल्स के साथ इन्फॉर्म करेंगे, किसी ने बोला कि मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूं, तो आप क्यों बोलेंगे कि आप मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदें, क्योंकि आपके पास अगर डेटा होगा, आप अगर सेल्स ट्रैकर में अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखेंगे, तो आप उनको बता पाएंगे मैंने पिछले 3 महीने में इतने कस्टमर्स गेन किए और उन कस्टमर्स की ये प्रॉब्लम थी और उन लोगों की ये टेस्टिमोनियल्स है। तो अगर आप स्मार्ट टूल का सेल्स ट्रैकर का यूज करेंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, ये सारा डेटा मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। सो आप टेस्टिमोनियल्स दीजिए, अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे रीच आउट कीजिए, क्योंकि सेल्स अगर बहुत ईजी है। आपने जैसे आपको देखना है कि मेरे पिछले महीने कितने कस्टमर्स आपने एक्वायर किए, कितने लोग वन किए। आपको देखना हो कि अब जैसे आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है उसको लगभग 3-4 महीने यूज करने के बाद कस्टमर एक ठीक से अपना टेस्टिमोनियल प्रोवाइड कर सकता है। वो समझ पाया आपके प्रोडक्ट को और उसने एनालाइज कर लिया कि कि आपके प्रोडक्ट से उसके बिजनेस में क्या बेनिफिट या क्या चेंज आया है। तो आप उसी हिसाब से सेल्स ट्रैकर में रिपोर्ट्स में डेट रेंज के फिल्टर लगाकर आप देख सकते हैं कि मेरे जून मंथ में कितने कस्टमर्स आए थे। तो आप जून मंथ के सारे प्रोस्पेक्ट को निकाल कर उनके बारे में उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस या फिर क्या क्या बेनिफिट्स इसमें फील हुए। तो उस बेसिस पर आप अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स दे सकते हैं। सेल्स ट्रैकर आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको फिर टेस्टिमोनियल्स लेकर अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करने होंगे। रीअश्योर विद वैल्यू, so you have to end strong. This isn't the cost, it's a growth investment. तो आपको ये बताना है कि वो जो भी खर्च कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ये कॉस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। सो कई बार ऐसा रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हो सकता है आपके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट थोड़ी चीपर प्राइसिंग में हो। कस्टमर बोल सकता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मुझे केवल 12,000 रुपए में दे रहा है, आप मुझे सेम चीज 32,000 रुपए में दे रहे हैं, तो मैं आपका क्यों खरीदूं। तो आपको हमेशा से ही अपने कस्टमर को फील कराना है कि दिस इजंट अ कॉस्ट, दिस इज अ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। स्पेशली वो लोग जो ईगर टू बाय नहीं है, ठीक है, या फिर जिनके पास थोड़ा बजट का इशू है, जिनका परचेसिंग पावर पैरिटी काफी कम होता है, जो पैसा खर्च करने में थोड़ा सा हार्डनेस फील करते हैं, तो स्पेशली उनके लिए आपको रीएश्योर करना होगा ये कहे कि ये जो आप पैसा दे रहे हैं ये कॉस्ट नहीं इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी टीम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, जिससे कि आपको ग्रोथ होगी, आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपकी टीम ज्यादा काम कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको उनको रीएश्योर करना होगा। इसके साथ अब हम देखते हैं कि हम अपनी एक सेल्स टीम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग सेल्स टीम। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन चैलेंजेस। सबसे पहली चीज है लो मोटिवेशन, ठीक है। अगर आपके सेल्स की टीम में लो मोटिवेशन है, यानी कि कस्टमर ने अगर बोला कि मुझे आप प्राइसिंग भेजिए, अगर लो मोटिवेशन है तो फिर हो सकता है फिर वो तुरंत के तुरंत प्राइसिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ना भेजें। फिर आपका जो कस्टमर है उसका जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो गया, उसको लगेगा कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो सेल्स की टीम है, वो उतना ईगर नहीं है, तो फिर हो सकता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाए। तो इसलिए जो सेल्स टीम है
उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस ये होते हैं कि वो लो मोटिवेशन होता है, ठीक है। अनक्लियर गोल्स, उनको पता नहीं कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। अगर आप उनको एक फिक्स टारगेट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। उनके पास अगर फिक्स टारगेट नहीं है तो फिर वो उस हिसाब से सेल्स नहीं करेंगे, उस हिसाब से कॉल्स नहीं करेंगे। विदाउट टारगेट एक्चुअली अ पर्सन इज हेडलेस, ठीक है, उसको नहीं पता है कि उसको क्या करना है। तो आपको उनको टारगेट देना होगा। लैक ऑफ ट्रेनिंग और प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जो आपका टीम मेंबर आपका प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, अगर उसी को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दिस इज अ ट्रेजेडी। क्योंकि किसी भी टाइम कस्टमर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर मैं हूं, मैं अपना कोई प्रोडक्ट आपके सामने बेचने जा रहा हूं, मैं ये सनग्लास आपके सामने बेचना चाह रहा हूं, तो अगर आप मुझसे इसके बारे में पूछेंगे और मैं नहीं बता पाया कि इसमें ब्लू कट लेंस लगा हुआ है, तो फिर आपको ये प्रोडक्ट स्पेशल नहीं लगेगा और आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं। सो आपकी जो सेल्स टीम है उसे प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए और प्रोडक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी बिजनेस के सिनेरियोज में देख लीजिए, आप किसी मारुति के शोरूम में जाते हैं कार परचेस करने, तो वहां पर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वही ये ना बता पाए कि ये कार डीजल या पेट्रोल कौन से फ्यूल से चलेगी, तो फिर आप उनका प्रोडक्ट कैसे खरीद पाएंगे। अब इसके सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला ये कि आपको स्ट्रक्चर्ड हायरिंग करनी है और रेगुलर ट्रेनिंग करनी है। आप हायरिंग के टाइम पर अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को थोड़ा फिल्टर करके हायर करें। आप देखें कि कौन सा टीम मेंबर मोटिवेशन में हाई है, कौन सा टीम मेंबर मोटिवेशन में लो है, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी है कि जो ज्यादा हाई एनर्जी वाले, हाई मोटिवेशन वाले लोग हैं, आप उनको हायर कीजिए। प्लस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए हायरिंग का, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के थ्रू ही हायरिंग कीजिए, तो इससे आपके पास अच्छे रिसोर्सेस आएंगे। और फिर उन रिसोर्सेस को भी मेंटेन करने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। मंथली, वीकली या फिर आप क्वार्टरली, वो आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट की कैसे ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। बट उनकी रेगुलर ट्रेनिंग सेल्स प्रोसेस की, प्रोडक्ट की और जो बाकी ओवरऑल चीजें होती हैं उसकी आप सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराइए। इसमें ट्रेनिंग में कस्टमर से बात कैसे करनी है, फॉलोअप्स कैसे करना है, वो इंक्लूडेड है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके सब्स्टिट्यूट हैं आपके प्रोडक्ट के, आपको उनके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करते रहनी है। और आपको उसके बेसिस पर आप जो नए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी या फिर नई क्या बातें वो कस्टमर को बता सकते हैं, या फिर नए किस तरह से वो प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो वो अपडेट करते रहना है। तो ट्रेनिंग सेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस एज वेल। उसके साथ साथ कस्टमर, क्योंकि आप सेल्स कर रहे हैं और कस्टमर ऑलरेडी आपकी प्रोसेस को समझ रहा है और आपकी प्रोसेस से वो ठीक से सिंक हो चुका है, तो हर बार हर टाइम आपको कुछ नया इंप्रूवमेंट करना होता है अपनी प्रोसेसेस में, वेदर इट्स योर प्रोडक्ट और इट्स योर सेल्स प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे तो आप रेगुलर उनमें अपडेट्स भी ला पाएंगे, आपकी प्रोडक्ट टीम आउटडेटेड नहीं रहेगी। द नेक्स्ट थिंग इज क्लियर सेल्स प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। आपकी जो सेल्स की प्रोसेस है उसकी क्लियर डॉक्यूमेंटेशन रेडी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि टीम मेंबर अपने माइंड से गैस करें तो उनको टाइम लग सकता है, हो सकता है वो भूल जाए, हो सकता है वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो उस केस में बहुत हार्मफुल रहेगा ये। तो इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। वीकली वन ऑन वंस रखिए, आपके जो टीम मेंबर्स हैं आप उनसे वीकली वन ऑन वन कीजिए, बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपकी सेल्स टीम है उसमें अ, अभी तो आप बस रिपोर्ट से, आपका जो फोकस है वो केवल रिपोर्ट्स के ऊपर है, बट एक्चुअल में आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। हो सकता है आपकी लीड्स में प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो, बट हर बार आपको सेल्स टीम की ही गलती समझ में आती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनसे वन ऑन वन रखिए, उनसे पर्सनली बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको एनालाइज कीजिए। अगर वही सेम प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको रिजॉल्व करा सकते हैं, जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो सफर ना करे, ठीक है। तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव से वन ऑन वन बातचीत करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी एक सोल्यूशन है। इसके बाद रिकग्निशन एंड इंसेंटिव्स, ठीक है। सेल्स टीम आपकी हार्ड वर्क करती है, तो आपको जरूरी बनता है कि आप उनके जो हार्ड वर्क्स हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ही टीम मेंबर उनके बारे में अच्छा फील करेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उनको इंसेंटिव्स भी दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है रिकॉग्निशन की, इंसेंटिव्स की, ये उनको मोटिवेटेड रखती है और उनको अच्छा फील कराती है, और प्लस आगे ज्यादा से ज्यादा करने के लिए उन्हें प्रेशराइज भी करती है। तो इसीलिए आप उनके जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो भी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए उनके लिए आप रिकॉग्निशन दीजिए और उनके लिए इंसेंटिवाइज भी कीजिए। उसके बाद लास्ट इज बिल्ड अ कल्चर ऑफ ओनरशिप एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। सेल्स चक्कर में आपने एक लीड किसी को असाइन कर दी, अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको एक ओनरशिप वाला एक कल्चर बिल्ड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो
एक कस्टमर अगर आपने किसी टीम मेंबर को असाइन कर दिया, एक लीड आपने किसी टीम मेंबर को असाइन कर दी, तो अब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीम मेंबर की है। तो आपको ऐसा कल्चर बनाना है जहां पर ऐसा सेटअप हो कि कस्टमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मेंबर के पास है और आपको पता है कि इस कस्टमर से रिलेटेड जो भी बात है वो मुझे इस टीम मेंबर से करनी है। तो आपको ऐसी ओनरशिप, उसके साथ साथ कोलैबोरेशन भी, क्योंकि हो सकता है आपकी जो टीम है, आपकी जो सेल्स की टीम है, हो सकता है उनको और टीम मेंबर्स की भी जरूरत पड़े, ठीक है। तो कोलैबोरेशन भी होना चाहिए। अगर एक सेम लीड दो टीम मेंबर्स के पास पहुंच गई है, ठीक है, दो के पास पहुंच गई है बाय मिस्टेक, तो उस केस में क्या है कि आपकी टीम जो है उनका कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फाइट्स नहीं होनी चाहिए, क्वेरल्स नहीं होने चाहिए, प्लस ये कि ओनरशिप प्रॉपर रहनी चाहिए। एंड सिक्स सेक्शन, अब वी कैन सी स्मार्ट सेल्स एंड डैशबोर्ड्स, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि सेल्स ट्रैकर क्या किस किस चीज में आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले आपको इस चीज के लिए दिखाता है कि टारगेट आपने कितना टीम को दिया था, कितना एक्चुअल को अचीव कर पाए, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि फास्टेस्ट क्लोजर कौन कर रहा है आपकी टीम में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टीम मेंबर्स के एफर्ट्स देखने हैं, ठीक है, और उनके एफर्ट्स को इंसेंटिवाइज करना है। तो आप कैसे देखेंगे उनके एफर्ट्स को? उसका यही सोल्यूशन है कि आप सेल्स ट्रैकर का डैशबोर्ड को यूज करेंगे। सेल्स ट्रैकर के डैशबोर्ड को यूज करने के बाद आप उसमें सबसे ज्यादा क्लोजर कौन कर रहा है, सबसे फास्टेस्ट क्लोजर कौन कर रहा है, ओवरड्यू प्रॉस्पेक्ट किसके पास है, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट एंगेजमेंट कौन कैसा कर रहा है, तो आप वो इजीली जाकर प्रॉस्पेक्ट डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं कि किस कस्टमर से क्या बातचीत कर रहे हैं। तो जिस टीम मेंबर ने सबसे अच्छा कन्वर्सेशन किया हुआ है प्रॉस्पेक्ट के साथ, जिसने सबसे टाइमली रिस्पॉन्सेस किए हुए हैं, जिसने सबसे बेटर डेटा सेव करके रखा हुआ है, वो आपका बेटर टीम मेंबर है। आप उसके लिए फिर उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसने जो अच्छा काम किया है आप उसके लिए एप्रिसिएशन देंगे और उसको फिर इंसेंटिव भी देंगे। इफ एक्सीडिंग टारगेट्स, डबल डाउन ऑन व्हाट्स वर्किंग, सेम टीम सेम चैनल। अगर टीम जो है वो टारगेट को मीट कर पा रही है, ठीक है, आपकी जो टीम है वो टारगेट को मीट कर पा रही है, तो आप ऐसा करेंगे कि जो भी काम कर रहा है आप उसको डबल कर दीजिए, ठीक है, सेम टीम सेम चैनल। And if missing target, drill down. Who's underperforming? Which stage is losing most leads? ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं कि किस स्टेज पर सबसे ज्यादा लीड्स कम हो रही हैं, किस जैसे आपने सेल्स ट्रैकर में रिपोर्ट्स में जाके फिल्टर अप्लाई किया लॉस्ट का, और लॉस्ट में आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लीड्स हैं जो इंटरेक्शन के टाइम पर ही या फिर जो बात फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही लॉस्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब हो सकता है आपकी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास लीड्स जो है वो ठीक नहीं आ रही है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके जो टीम मेंबर्स है वो जो फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं वो ही खराब हो जा रहा है, तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है और वो तुरंत ही वर्कआउट कर देता है, ठीक है। अगर आपने सेल्स ट्रैकर का यूज किया और आपने लॉस का फिल्टर लगा के देखा कि आपके जो प्रोडक्ट लॉस्ट हुए हैं वो किस स्टेज पर लॉस्ट हुए हैं, और उसमें आपने देखा कि नेगोशिएशन के स्टेज पर लॉस्ट हुए हैं, तो आपको पता है कि आपकी जो प्राइसिंग की स्ट्रेटजी है या फिर जो कन्विंसिंग की स्ट्रेटजी है या फिर आपको विन करने की जो स्ट्रेटजी होती है, जो फाइनल पार्ट है, वहां पर आपकी टीम कमजोर पड़ रही है, तो आप फिर उस हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स ट्रैकर विल हेल्प यू इन दिस प्रोसेस, ठीक है। नाउ वील सी हाउ टू इंप्रूव विन रेट विद स्मार्ट एनालिसिस। सो ट्रैक परसेंटेज ऑफ वॉन लीड्स, ठीक है, आपकी जो लीड्स हैं उसमें से कितने परसेंट वॉन हो रही हैं, तो ये बहुत देखना जरूरी है और आप ये सेल्स रिपोर्ट में जाके बहुत इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक टीम मेंबर है फॉर लेट्स से फॉर सपोज अल्फा, ठीक है, उन्होंने अपनी लीड्स में से 87% जो है वन की है, और एक दूसरा टीम मेंबर है जिसका नाम है बीटा या ब्रावो, ठीक है, उन्होंने केवल 50% की लीड वन की है। तो आप देख सकते हैं कि इस टीम मेंबर ने जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू दी अदर वन, ठीक है। तो आप फिर उसी हिसाब से काम करेंगे, या तो आप ब्रावो से बात करेंगे, आप बोलेंगे अल्फा से कि आप उनको थोड़ा ट्रेनिंग दे दो जिससे कि उनकी भी फिर परफॉर्मेंस ठीक हो जाए, वन ऑन वन रखेंगे। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपके किस चैनल ने आपने कितना कन्वर्जन लाके दिया है। अगर आप फेसबुक से ऐड चला रहे हैं तो फेसबुक के 100 में से कितने लीड्स जो हैं वो आप क्लोज कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम के 100 में से कितने लीड्स क्लोज कर रहे हैं, प्लस वो कितने कितने अमाउंट के हैं, प्लस गूगल से कितने लीड्स आ रहे हैं और उसमें आप कितने क्लोज कर पा रहे हैं। तो आप इस तरह से भी चैनल वाइज अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस देख सकते हैं इसमें। इसके बाद आप यहीं से इसी के थ्रू वन ऑन वन रख सकते हैं, ठीक है, और ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं लीड्स को कैच करने के लिए। लर्न फ्रॉम लॉस्ट डील्स, ठीक है, बिकॉज कस्टमर इज योर ग्रेटेस्ट टीचर, ठीक है। कस्टमर आपको बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है
उसमें क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपकी जो मार्केटिंग की प्रोसेस है आपकी उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपकी सेल्स की प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें आप कस्टमर को देखकर कस्टमर के थ्रू ही आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से लीड्स आ रही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपका जो एक्चुअल कस्टमर बेस है वही आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि मार्केटिंग की जो प्रोसेस है उसमें कहीं पर कोई एरर है। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो कस्टमर आ रहे हैं वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को ले लेते हैं आपकी सेल्स की प्रोसेस के बीच में ही, इसका मतलब हो सकता है आपकी सेल्स की जो प्रोसेस है या तो उसमें वहां पर कोई एरर है या फिर आपके प्रोडक्ट में कोई एरर है। ठीक है, तो वो एरर्स कहाँ कहाँ पर हैं, आप वो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए आपको सेल्स ट्रैकर का लॉस प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हेल्पफुल रहता है। इसमें आप जब भी अपने कस्टमर को लॉस्ट करते हैं तब वो किस रीजन से लॉस्ट हुआ है, कौन सा दूसरा प्रोडक्ट खरीदने की वजह से लॉस्ट हुआ है, या फिर किसी अलग रीजन, या फिर कहाँ कौन सी प्रोसेस पर आकर लॉस्ट हुआ, तो ये आप सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले सारे रीजंस की लिस्ट में ऐड कर लेंगे, अपने प्रोडक्ट के जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मेजर कॉम्पिटिटर्स, उनके नाम वहां पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो प्रोसेस है, या फिर आपके पास जो भी मेजर और कंसर्न है, जैसे मान लीजिए आपका जो कस्टमर बेस है वो है बिजनेसेस का, बट आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है। ठीक है, तो आप वो भी उधर मेंशन कर सकते हैं। तो फिर आप एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे पास जो 100 लीड्स आई उसमें से 10 ने बोला कि वो स्टूडेंट्स हैं इसलिए उन्होंने नहीं लिया, तो फिर आप स्टूडेंट्स के लिए कोई छोटा लाइटर पैक दे सकते हैं, या फिर आप कुछ चेंजेस करके, कुछ मार्केटिंग प्रोसेस में चेंजेस करके, या फिर अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा एनहेंसमेंट करके या फिर मॉडिफिकेशन करके स्टूडेंट्स के लिए भी उसको मार्केट रेडी बना सकते हैं। तो इससे फिर क्या है कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे विन होंगे, और आप ठीक से आपको एक इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपके प्रोडक्ट में या फिर आपकी मार्केटिंग सर्विस में या फिर आपके सेल्स की प्रोसेस में कहाँ कहाँ पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट का स्पेस या चांसेस हैं, कहाँ कहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी जो प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो लूज ना हो। All right, now I'll take your questions. Feel free to raise your hand or drop it in the chat. Let's go deep in whatever you need help with. Okay, so if in case आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अभी जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई है इसमें कहीं पर आपको कुछ भी थॉट आता है, कुछ भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप या तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए या फिर हैंड रेज कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। So thank you so much everyone for being a part of today's session on smart sales analysis and conversion strategies. I hope this helped you look at your follow-ups, pitching, and sales tracking in a more structured and effective way. Just remember, consistency beat chaos. Follow-ups, when done smartly, are not just reminders, they are relationship builders. If you implement even 2-3 things as we discussed today, I guarantee you'll start seeing the better conversion numbers. We'll be sharing the resources and recording shortly. And if you want help setting up dashboards and building sales processes for your team, feel free to reach out. Once again, thank you. Let's keep closing smart, not hard. See you next time in the next demo. Thank you.